Just confirm me. Are you able to see my screen? Not yet. Yes, sir. Yes, now we can. Okay. Okay. Good morning, friends. My name is Hussein Patan, and I will be your trainer for VBA Foundation batch. So I would request you to quickly introduce yourself so that we may come to know each other. All right, so I'll go first. Hello everyone, my name is Sushil Gajjar and I am from Pune itself. And right now I'm working with Coupa Software as a payroll specialist. I'm handling their US payroll processing and working in their finance department since last year. So yeah, this is something about me. Okay. Thanks, Sushil. So I would request Meera to go first. We will go by alphabetical order. Okay. Okay. Yeah. Meera Zado, will you please introduce yourself? I guess there is some issue with Meera's microphone. So we'll skip Meera and we'll move to Zamran. Yeah, Zamran, will you please introduce yourself? Yeah, hi, myself Zamran Khan. I'm from Pune itself. I've been working with WNS from last 5 years in WFM team, and I just wanted to learn micro because it's necessary for me to in my day-to-day work. Okay. Montu, will you please introduce yourself? Meera, your voice is not audible. You are unmuting yourself. However, your voice is not audible. Will you please check the speakers of your laptop or mobile through which you have joined? Yeah, Montu. Yeah, hi friends, my name is Mantu Dutt. I'm from Odisha. I'm working in Pune right now in Jeep Davis Performance Marketing as a MIS executive last 2 years. Okay, thanks, Montu. Priyanka, will you please introduce yourself? Yeah. Hello friends. My name is Priyanka Ramshir Sagar, and I worked in a government organization for 3 years, uh, and I have basic knowledge of Excel. That's all. Okay. Sagar, will you please introduce yourself? Hello friends, my name is Sagar Nimat. I am from Pune. I am working in Lear Corporation from last 8 years. Okay. Vaibhav, will you please introduce yourself? Hello everyone, good morning. My name is Vaibhav Osekar. I live in Pune. I have total 8 years of experience in finance function and currently working with Danner Corporation, which is based in Mumbai. Okay. Sorry, who is next? Let me check. Sagar, Elton, Vaibhav, Vedant. Vedant, will you please introduce yourself? Hello. Yes, Vedant. Hello. Good morning. Good Good morning. morning, everyone. I am from Pune. My name is Vedant Surenshi. Okay. I'm a beginner for the Excel course. So I have just experience with the now for 2 years as a sales executive. So I'm entering into the software now in just now. So I have no experience about the software and all. Okay, Okay. sir. Yeah, thanks. Thanks, Vedant. Mira, Thank if you. you are facing some issues, then you may just introduce yourself by writing into the chat window.
Okay, friends. So I guess everybody are comfortable with English and Hindi language. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay, so we will No, be no having issue. the, yeah, we will be having this session in English as well as in Hindi. Okay. Hussein, we can't hear you. Now, am I audible to you? Yes. Yeah, I can. Yes. Yeah, Zamran, am I audible to you? Zamran, I would request you to please exit and rejoin this call. Okay, friends. So let's get started. Please confirm me. Are you able to see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. So, friends, my name is Hussein Patan. I am holding total 13 years of experience and I will be your trainer for VBA Foundation Batch 1. So, this is the agenda for the day. That's introduction. What is VBA? Why should we learn? Course information and payment mode. So, introduction part we have already done. So, let's come up to what is VBA and why should we learn? Okay. So, what do you think? What is VBA? Any basic idea, as most of you are the experienced person? So it's a basically it's a Visual Basic language which we use in Excel platform to automate any task. That's what I know about the VBA. Okay, that's good. Anybody else would like to share your opinion or answer? What is VBA? Yeah, I think it's a coding where we can automate whatever we are doing on daily basis, so we Okay, can minimize the manual work. okay, fine, correct. So whatever answers you have given, that it's a, let me check who has given their input. This is Oman. I logged out to my sister's laptop. I'm working with Cognizant Technology at MS. Okay, Sopan, fine. Okay, thanks Sopan for introducing yourself. Okay, as you have told me that VBA is the Visual Basic Application. Mostly it is been used into the Excel and it is been used for automating our task. Okay, the repetitive of a task. As most of you are working into the Excel, so there might be few reports that take a longer time and you need to reduce the timing for preparing that report. For that purpose you require a VBA and it's a programming language. So may I know how many of you think that programming language is very difficult, and we are from commerce background, we are from arts background, we are not able to understand the codings? How many of you think in this way? Yeah, Hussein, I think so because I'm from commerce background itself, so that it will be difficult, as I think so. Okay, so you think that you are from commerce background and Yeah, the programming language would be difficult for you. Okay, yeah, because you haven't learned into your graduations, right? Graduation right. courses, correct? Okay. Any one would like to share your inputs? Let's make this session quite interactive, friends. If you will not speak up, then I would be not able to understand that what is your requirement, what is your need, and you would be not able to understand that what is this course all about. And I So I would say that this VBA Visual Basic Application, uh, of course it's a
programming language, but to learn this language, we need to do a lot of practice because I think it will come through practice only, regardless of you are from any background, right? So I think we need a lot of practice in this. That's right. Practice is must. See, I would just give you a real life example. When you have started your career, Excel was totally new for you, correct? And you were not aware how the Excel works. What are the functions of Excel? What are the shortcuts of Excel? Since you were doing it throughout these years, now you are at a position wherein you have built on your hands onto the Excel, राइट? मतलब अभी आप इतने ट्रेन हो चुके हो एक्सेल में कि आप आपके कलीग्स को हेल्प आउट कर सकते हो कि कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको सॉल्व आउट करने के लिए। आप इस लेवल पे कैसे पहुंचे? प्रैक्टिस के थ्रू। तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर लर्न करो, कोई भी सॉफ्टवेयर को सीखो या फिर कोई भी कोर्सेस करो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो उसका कुछ फायदा नहीं है, टू बी फ्रैंक। इफ यू आर इनटू अ प्रैक्टिस, डेफिनेटली उस कोर्स से आपको कुछ ना कुछ तो भी आपके फायदे की चीजें मिलेगी। एम आई राइट फ्रेंड्स? Yes, just wanted to add some more thoughts. So this is my, so earlier I joined. Uh, I have already taken the course for Excel as well. So 5 years back, I learned Excel from this organization AFKC, and since then, the training material they have provided, you have provided, it was excellent, and right now I am capable of working on Excel. It's just because of AFKC. ओके, thanks for your valuable input. So I have just missed out one part. I have missed out to introduce our institute. So AFCK's Technologies is our institute name. Okay, I would just take you to the Google page over here. I'll just close it. So afckstechnologies.in, this is our website. If you are not able to remember the website, you may just go to google.co.in and you may just type in AFCKS Technologies. So this is our homepage, AFCKS Technologies home. You may just open it and you may see that we have started our journey in April 2010, and since 13 years we are into this industry offering n numbers of courses. If you click on this course page, you would see we offer n number of courses, right from the Excel to the advanced level courses. If you see into the specialization courses, we offer Python also. These are the advanced level courses. Okay, and Excuse me, sorry, Hussein, to interrupt you. yes, Actually, we were not able to hear you. Means, was I the only facing the issue, or I don't know? Now I I started. think this is from your side, because we are yeah, able to hear. I am able to hear. Okay, okay. Because now I started getting the view. Earlier, it was like I thought you had stopped. no. Actually, we were just having a introduction part. We were having some question answer session. So right now the actual session has been started. Okay, okay, okay. Okay. So as I have told you, we have started our journey 13 years back. That is 2010, and we have been offering n number of courses from the basic level courses to the advanced level courses. And Mr. Raza Sagar is a co-founder who has started this institute. So if you scroll down into this home page, when you scroll down, you may see we have multiple groups created on Telegram. For each courses, we have created a query solving group, and I would request you to uh, get registered, means get added to this group and help the users into this group in solving their queries.
because this would help you in your practice purpose, as well as you would come to know how the users are facing challenges into their day-to-day life, and how you can provide them solution, how people are providing them solution. You would easily get to know over there. एंड इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा, एंड साथ ही साथ आपको एक मौका मिलेगा कि किसी का हेल्प आउट करें, किसी को हेल्प आउट करें. ओके, और साथ ही में यहाँ पे लास्ट में अगर आप देखोगे, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, जस्ट अ मोमेंट, ओवर हियर, सॉरी, फॉर जॉब अपॉर्चुनिटी. यहाँ पे एक टेलीग्राम का हमारा एक चैनल है, तो आप ये जॉब अपॉर्चुनिटी वाला टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन अप कर सकते हो, जहाँ पे हमारे जो एक्स स्टूडेंट्स है, कोई यूजर्स है, जो ग्रुप में जो मेंबर्स है, वो जॉब पोस्टिंग करते रहते हैं. एंड अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर जॉब पोस्टिंग आपके लिए सुटेबल है, आप वहाँ पे एड ऑन हो सकते हो. और आप देख रहे हो ये ऑलमोस्ट 3.5 के यूजर्स उसमें एडेड है, एंड इवन डे टू डे उसमें यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं. सो यहाँ पे आपको एक एडवांटेज मिलता है कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चलता है, एंड सिंस यू आर इनटू दैट ग्रुप, तो डेफिनेटली आपको फर्स्ट प्रेफरेंस वहां पे दिया जाएगा जब आप इंटरव्यूज में जाते हो. करेक्ट फ्रेंड्स? सो just a second, let's come back to this presentation. So over here we were into the question, what is VBA? So VBA is Visual Basic Application. It is designed and developed by Microsoft. ठीक है, और ये ऑफिस एप्लीकेशंस के साथ काम करता है. ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी क्या है, ऑफिस एप्लीकेशंस कितने कितने हैं फ्रेंड्स? आप मुझे बता सकते हो ऑफिस एप्लीकेशंस, एमएस ऑफिस के एप्लीकेशंस कितने हैं? Am I audible to you friends? Yes, sir. Excel, MS Word, then we have PowerPoint. करेक्ट, Outlook, करेक्ट, Outlook. करेक्ट. सो ये जो विजुअल बेसिक एप्लीकेशन है, ये सभी एप्लीकेशंस के ऊपर काम करता है, लेकिन हम स्पेसिफिकली एक्सेल का कोर्स करने वाले हैं, बिकॉज हमारा ज्यादातर काम एक्सेल में रहता है. करेक्ट, क्योंकि बिना एक्सेल के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करता है. एक्सेल ये ऐसा प्राइमरी चीज है, ऐसा प्राइमरी सॉफ्टवेयर है आई में से, कि जो डॉक्टर के क्लिनिक से लेके मल्टीनेशनल कंपनी तक यूज अप होता है. एंड VBA का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये एक्सेल में इनबिल्ट फीचर है, जिसके लिए आपको एडिशनली कोई सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है. तो अगर आप में से किसी के जहन में या किसी को ऐसा लग रहा होगा कि VBA का फ्यूचर क्या है, तो VBA का फ्यूचर हमेशा रहेगा, बिकॉज कोई भी नया सॉफ्टवेयर अगर आप परचेस करने जाते हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नया सॉफ्टवेयर परचेस करना जाते हैं, तो उनको करोड़ों में उसको पे आउट करना पड़ता है, राइट? एंड वो सिर्फ सॉफ्टवेयर परचेस करना ही लिमिटेड नहीं है, आफ्टर सेल्स सपोर्ट भी मिलना बहुत जरूरी है. अगर आप कोई बाइक लेते हो तो उसको मेंटेन भी करना पड़ता है, राइट? उसके लिए आपको आफ्टर सेल सपोर्ट चाहिए होता है. तो आफ्टर सेल सपोर्ट के लिए आप क्या करते हो, रेगुलर बेसिस पे क्वार्टरली आप आपके नजदीक के सर्विस सेंटर में जाके आपके बाइक की सर्विसिंग करवाते हो. सो उसी तरीके से ये सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं. सॉफ्टवेयर्स भी एंड ऑफ द डे इट्स अ मशीन. एक बार आपने ले लिया, भूल गए, ऐसा नहीं होता है. उसमें भी आपको रेगुलर बेसिस पे सपोर्ट्स चाहिए होते हैं, क्योंकि उसमें भी छोटे छोटे बग्स वगैरह आते रहते हैं, तो उसको फिक्स करना बहुत जरूरी है. सो आफ्टर सेल्स सर्विस करना भी बहुत जरूरी है, जिसके लिए उस आपको पे आउट भी करना पड़ता है. एंड एक्सेल का तो बिना एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के आपका जो सिस्टम है वो बेकार है, वो काम ही नहीं करेगा, राइट? तो आप जब एमएस ऑफिस लेते हो तो बाय डिफॉल्ट आप उसका लाइसेंस परचेस करते हो, एंड अगर आप लाइसेंस परचेस करते हो तो डेफिनेटली आपको इनबिल्ट फीचर्स उसके मिलते हैं.
सो कंपनी क्या सोचती है कि जो चीजें हमको इनबिल्ट मिल रही है एक लाइसेंस परचेस करने पे, अगर हमको इतने सारे फीचर्स मिल रही है, तो हम ये फीचर्स इस्तेमाल करने के बजाय हम अननेसेसरी नया सॉफ्टवेयर परचेस क्यों करें? आप भी अगर कंपनी की जगह पे होते तो आप भी यही सोचते, राइट? क्योंकि हर कोई अपना पैसा बचाने का सोचता है, हर कोई कॉस्ट कटिंग के बारे में सोचता है। एंड रिसेंटली तो कॉस्ट कटिंग के बारे में सब लोग जानते ही होंगे कि हर एक कंपनी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन काफी सोच रहा है। एम आई राइट फ्रेंड्स? Yep, Yes, agree. sir. Yes, sir. ओके, सो ये जो है ये इनबिल्ट फीचर है। ओके, एंड इसको क्यों यूज करते हैं? ऑब्वियसली टू ऑटोमेट द टास्क, राइट? अभी यहाँ पे क्या है कि इस लैंग्वेज को कहते क्या है? तो बेसिकली दिस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ओके, एंड प्रोग्रामिंग फील्ड में ये सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज है लर्न करने के लिए। इसका बस एक ही प्राइमरी रिक्वायरमेंट होता है कि आपको एक्सेल आना चाहिए। अगर आपको एक्सेल आता है तो आप वीबीए बहुत आसानी से सीख सकते हो। बस इतना ही है कि थोड़ा सा लॉजिक आपको यूज करना पड़ता है, एंड वो आपको प्रैक्टिस के थ्रू आता है। एंड जब हम ये कोर्स करेंगे तो हम आपको ये सारी चीजें बताएंगे, इन डेप्थ लेकर जाएंगे, राइट फ्रॉम द बेसिक, कि किस तरीके से आपको ये स्टार्टअप मीन्स किस तरीके से आप ये इसको यूज कर सकते हो, इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो, इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। जैसे कि आप अगर आप, या टेल मी। Sir, you mentioned it is an object-oriented language. So what does it mean that what is object-oriented? Can you please? ओके, अभी देखिए वर्कबुक क्या है? वर्कबुक एक ऑब्जेक्ट है, राइट? Okay. उसके अंदर क्या रहता है? वर्कबुक के अंदर Sheets रहता है सर. करेक्ट, शीट्स रहते हैं। आप काम किस में करते हो? शीट में करते हो, करेक्ट? Right. Right. ओके, तो वो क्या है? वो भी एक ऑब्जेक्ट है। Correct. ओके, अभी इसका कैसा रहता है? इसका एक पैटर्न रहता है, ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज, मेथड, ऐसे हर एक कोडिंग्स के मेथड्स होते हैं। तो आप जब कोडिंग्स लिखते हो तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको बताना पड़ता है, राइट, कि आपके पास मल्टीपल शीट्स हैं। तो मल्टीपल शीट्स, फॉर एग्जांपल आपके पास 1 to 10 शीट्स है। ओके, आई वुड जस्ट शेयर वन एग्जांपल ओवर हियर। मैं एक एक्सेल फाइल ओपन करता हूं, एक्सेल वर्कबुक। ओके, अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभी हमारे पास 1 to 4 वर्कशीट्स है, करेक्ट? अभी अगर आपको शीट 1 में ही काम करना है तो आपको स्पेसिफिक कमांड देना पड़ेगा कि शीट 1 में जाके XYZ टास्क कंप्लीट करो। सो शीट 1 क्या हो गया आपका? शीट 1 हो गया आपका ऑब्जेक्ट। Okay. ओके, सो ये सारी चीजें जो है जब हम कोर्स को रिज्यूम करेंगे, सीखेंगे, ये सारी चीजें उसमें कवर अप होती रहेगी। तो सर डज दैट मीन शीट 1 में जो डिफरेंट सेल्स हैं वो भी ऑब्जेक्ट है, राइट? मुझे किसी एक पर्टिकुलर सेल से कुछ डेटा लेना है वीबीए के थ्रू, सो दैट वुड आल्सो बी कंसीडर एज एन ऑब्जेक्ट, राइट? करेक्ट, सेल्स भी एक ऑब्जेक्ट है, करेक्ट। ओके ओके ओके, व्हाट? ओके, और किसी को कुछ क्वेश्चंस इसमें? यस फ्रेंड्स, और किसी को कोई क्वेश्चंस? No, sir. ओके, सो लेट्स मूव अहेड। तो आप देख रहे होंगे मेरे सिस्टम पे यहाँ पे डेवलपर का एक टैब है एक्सेल रिबन्स पे। जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे होंगे विजुअल बेसिक्स, रिकॉर्डिंग है, मैक्रोज है, यूज रिलेटिव रेफरेंस है, मैक्रो सिक्योरिटी, काफी सारी चीजें हैं यहाँ पे। एंड जिन्होंने एक्सेल का कोर्स किया हुआ है वो लोग इससे फिमिलियर हो गए, और जिन्होंने एक्सेल का कोर्स नहीं किया है, टोटली न्यू टू द वीबीए है, कोई बात नहीं है, हम ये सारी चीजें हमारे कोर्स में कंप्लीट कवर अप करने वाले हैं। तो जब आप ये विजुअल बेसिक के ऊपर क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे प्रॉपर्टी विंडोज है, ठीक है, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है, एंड यहाँ पे काफी सारी चीजें दी हुई है, जैसे कि इमीडिएट विंडो है, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट ब्राउजर है, लोकल विंडो है,
वॉच विंडो है। ओके, तो ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसका यूज होता है, कब यूज होता है एंड इसका फायदा क्या होता है। ओके, फिर इसमें इंसर्ट में आप देख रहे होंगे यूजर फॉर्म है, मॉड्यूल्स है, क्लास मॉड्यूल्स है। तो किसमें हमको कोर्स लिखने हैं। ओके, ज्यादातर तो कोर्स हम मॉड्यूल्स में लिखते हैं। ओके, फिर ये ऑप्शन एक्सप्लिसिट क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, ये बाय डिफॉल्ट क्यों आया। ठीक है, फिर इसमें काफी सारे बटन्स दिए हुए जैसे कि रीसेट है, ब्रेक है, रन है। ठीक है, ये कब यूज करते हैं, क्या इसका एडवांटेज है। फिर यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये कमेंट ब्लॉक्स है, अनकमेंट ब्लॉक्स है। एक मिनट, एक नया यूजर ज्वाइन हुआ है, प्रतीक शिंदे। हाय प्रतीक, गुड मॉर्निंग। सो यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं जो हम आपको राइट फ्रॉम द बेसिक से सिखाएंगे कि किस तरीके से ये सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है एंड कब और कैसे इस ऑप्शंस को यूज करना है। सो राइट फ्रॉम द स्क्रैच वी विल बी टीचिंग यू ईच एंड एवरीथिंग इनटू दिस। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जाते हो इंसर्ट में, तो यहाँ पे प्रोसीजर्स में आप देख रहे होंगे सब रूटीन है, फंक्शन है, प्रॉपर्टी है, पब्लिक है, प्राइवेट है। ये पब्लिक प्राइवेट क्या होता है, क्या नहीं होता, ये कब यूज करते हैं, कब यूज नहीं करते, ये सारे की सारी चीजें हम कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसमें किसी को कुछ डाउट या क्वेरीज है? हेलो यस। सर, हम इस वीक में क्या पढ़ के आए जो वीबीए के लिए इजी हो सके समझने के लिए। मतलब इफ का फंक्शन हम कर सकते हैं, एच लुकअप वी लुकअप पढ़ के आना पड़ेगा, मतलब प्रैक्टिस करके आना पड़ेगा। देखिए, अगर आप होमवर्क की अगर बात कर रहे हो, ठीक है, हाँ हाँ तो होमवर्क के लिए आई वुड रेफर यू कि आप जो एक्सेल सीखते हो, हम्म, राइट, आप एक्सेल के ऊपर जब काम करते हो तो बेसिकली आप उसी के ऊपर थोड़ा सा आपका हैंड्स ऑन लेकर आइए, सो दैट आपको जब हम प्रैक्टिकली वीबीए की कोडिंग्स लिखेंगे तो उस समय आपको थोड़ा सा इजी चला जाएगा। ओके ओके, थोड़ा सा एक्सेल में आपके स्किल्स जो है थोड़ा सा इंप्रूव कीजिए, आपके हैंड्स ऑन उसमें लेकर आइए एक्सेल में, सो दैट इट वुड बी वेरी यूजफुल फॉर यू। ओके, बाकी की जो चीजें हैं वो राइट फ्रॉम द स्क्रैच हम आपको सिखाएंगे। थैंक यू। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाई शुड आई लर्न वीबीए। ओके, सो सबसे पहला चीज, ऑटोमेट द टास्क। काफी पॉपुलर थिंग है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप ये टास्क के बारे में बात करते हो तो कई बार आपने आपके ऑफिसेस में देखा होगा कि आपका मैनेजर आपको अप्रोच कर रहा है कि इस टास्क को इतना समय क्यों लग रहा है, why don't you try to optimize it, go and coordinate with the xyz person and get this task simplified or optimized, right friends? कई बार आपने आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपने ये वर्डिंग सुने होंगे। Yes. ओके, अभी मुझे एक बात बताइए, अगर आप किसी बंदे को अप्रोच कर रहे हैं, ओके, मतलब उस आपका ये टास्क ऑटोमेट करने के लिए ऑब्वियसली उसकी वैल्यू उतनी है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, राइट? Yes. Correct. ओके, तो आप भी चाहते होंगे कि आपकी भी वैल्यू उस पर्टिकुलर बंदे जैसी हो, आपको भी लोग आके अप्रोच करें, आपको भी लोग रिस्पेक्ट दें, Right. करेक्ट? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको आपके स्किल्स अपग्रेड करने पड़ते हैं। ठीक है, स्किल अपग्रेडिंग ये काफी बेसिक चीज है जो आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टैंड आउट परफॉर्मर की तरह डिस्प्ले करवाता है। काफी सारे बंदों को आपने देखा होगा कि अवार्ड्स मिलते हैं, रिकॉग्नाइजेशंस मिलते हैं। वो क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो अपने स्किल्स को अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं। अभी हम 21st सेंचुरी में हैं, राइट? तो आज का जो जमाना है इट्स प्योरली अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। हमारे जो फादर्स थे, हमारे जो ग्रैंडफादर्स थे, ओके, उनका जमाना कैसा था कि उन्होंने अगर एक कंपनी ज्वाइन कर ली तो थ्रू आउट देयर रिटायरमेंट
they used to be into that same company. Right or wrong, friends? Right. ओके, लेकिन आज का जमाना कैसा है कि लोग क्विकली अपने जॉब्स अपनी कंपनी स्विच करते हैं. स्विच क्यों करते हैं? सो दैट दे कुड गेट एन एक्सपोजर. उन्हें एक्सपोजर मिले कि कुछ नया सीखें. मार्केट में सस्टेन होने के लिए आपको मल्टीपल स्किल्स आना बहुत जरूरी है. अगर आपके Yes, पास sir. मल्टीपल स्किल्स है सो डेफिनेटली आपकी जॉब सिक्योरिटी उतनी बढ़ जाती है. एंड अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, आपको सैलरी में हाइक चाहिए होती है, तो आपको स्विचेस भी करना बहुत जरूरी होता है. राइट? Right, sir. एंड जब भी आप इंटरव्यू में जाते हो, कई बार आपने देखा होगा कि कोई भी इंटरव्यू हो उसमें मिनिमम 10 लोग होते हैं. एंड वो 10 लोगों में से अगर आपका सिलेक्शन आपको करवाना है, देयर इज वन मोर न्यू यूजर, हेमंत. हाय हेमंत, गुड मॉर्निंग. सो उस 10 लोगों में से अगर आपको आपका सिलेक्शन करवाना है, तो आपका सिलेक्शन कैसा होगा? टोटली बेस्ड ऑन योर स्किल सेट. अगर आपके पास अच्छा स्किल सेट है तो ऑब्वियसली आपका जो अपॉर्चुनिटी है जॉब मिलने की, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है. क्योंकि ईच एंड एवरी टाइम कोई भी सिंपल टास्क को ऑटोमेट करने के लिए हर कोई आईटी के पास नहीं जाएगा, या फिर कोई प्रोफेशनल कोडर के पास नहीं जाएगा कि भाई कि प्लीज हेल्प मी विद दिस, कि ये जो टास्क है इसे मुझे ऑटोमेट करके दो. हर एक डिपार्टमेंट अपनी टीम में ही ऐसा स्किलफुल बंदा चाहिए रहता है उन्हें, सो दैट वो दूसरों को हेल्प आउट करे टास्क को सिंप्लीफाइड करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए. ओके? अगर आप ये वीबीए का कोड सीखते हो तो ये आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक पाथ देता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर पहले आपने स्कूटर चलाया होगा, ओके, या हीरो होंडा की कोई बाइक चलाई होगी, स्प्लेंडर, CD100. सो ऑब्वियसली अगर आप स्कूटर चलाते थे तो आपको पता चल गया कि गियर्स किस तरीके से ऑपरेट करते हैं. फिर आपने पहले क्या था, हैंड गियर्स थे स्कूटर्स में, फिर वो गियर्स शिफ्ट हो गए, हमारे पैर में आ गए. लेकिन भूषण सर, मैं एक दोस्त के लैपटॉप से लॉगिन कर रहा हूँ, शिफ्ट कीजिए प्लीज. ओके, श्योर. हाँ, थैंक यू. ओके. तो जैसे जैसे जमाना चेंज होते गया, ओके, तो वैसे वैसे टेक्नोलॉजीज आती गई, लेकिन जो गाड़ी चलाने का तरीका है वो सेम ही रहा. कुछ चेंज नहीं हुआ उसमें. सिर्फ चेंजेस क्या हुए कि घेर पहले हाथ में थे, वो शिफ्ट हो गए पैर में. राइट? तो इसी तरीके से पहले 2 स्ट्रोक इंजन था, अब 4 स्ट्रोक इंजन आया. 4 स्ट्रोक इंजन में भी आप काफी सारे वैरायटीज आई है. आपने सुना होगा BS3, BS4, BS6. ओके, वो बस टेक्नोलॉजी चेंज होती गई, लेकिन जो मेन पर्पस था उसका, गाड़ी चलाने का जो तरीका था, वो तो सेम ही रहा. सिर्फ इंजन अपग्रेड होते रहे. उसी तरीके से VBA आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक पाथ देता है टूवर्ड्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इसमें अगर आपका स्किल सेट बढ़ गया, आपको लॉजिक समझ में आया, किस तरीके से कोडिंग्स लिखी जाती है, किस तरीके से प्रोग्रामिंग लिखी जाती है, किस तरीके से उसको ऑपरेट किया जाता है, किस तरीके से एरर्स को फिक्स किया जाता है, तो ऑब्वियसली धीरे 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 करके आपको एक पाथ मिलता है. एंड फिर आप जो प्रोग्रामिंग कोर्सेस है, धीरे धीरे करके अपग्रेड कर आपके स्किल सेट अपग्रेड करने की कोशिश करते हो. आपका हैंड्स ऑन बन गया VBA में. पहले आपका हैंड्स ऑन एक्सेल में था. एक्सेल के बाद क्या, तो आपने VBA किया. VBA के बाद क्या, तो आप SQL पे चले गए. ऐसे धीरे 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 करके जब आप आपके स्किल सेट अपग्रेड करते हो, तो ऑब्वियसली आपको काफी ज्यादा एक्सपोजर मिलता है इंडस्ट्री में. राइट फ्रेंड्स? Yes. Yes, sir. Okay, so let's move ahead. It's a wide application. अभी ये वाइड एप्लीकेशन क्यों है, कोई बता सकता है? ये वाइड एप्लीकेशन क्यों है?
I think because it is not just limited to Excel. Excel, We yes. can use it in Microsoft Word, Office, PowerPoint. Correct. Outlook, mail. करेक्ट, दैट्स राइट. ओके, तो हमारा डे टू डे टास्क किसमें रहता है? एक्सेल में, आउटलुक में सबसे ज्यादा काम. आउटलुक एंड एक्सेल में ही हमारा सबसे ज्यादा काम रहता है, राइट? तो ये वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन है, एंड जो भी आप एमएस ऑफिस यूज करते हो ये सब जगह पे यूज होता है. ऐसा कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे एमएस ऑफिस यूज नहीं होता है एंड एक्सेल यूज नहीं होता. एक्सेल तो प्राइमरी सोर्स ही है आपका. सो नेक्स्ट इज इजी टू लर्न, जो जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि बहुत इजी लैंग्वेज है लर्न करने के लिए. बस इतना एक ही क्राइटेरिया है इसमें कि आपको एक्सेल बहुत अच्छा आना चाहिए, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, रिड्यूस टैट. टैट क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम, राइट फ्रेंड्स? कोई आप बता पाएगा मुझे टैट होता क्या है? यस फ्रेंड्स, कोई बता पाएगा टैट होता क्या है? So that is basically turnaround time. If any of the task is assigned to us, and the time duration to complete that task is given for let's say for 1 minute. So that 1 minute time duration is the TAT of that particular task. करेक्ट. सो आपने अगर देखे होंगे कि काफी बड़े बड़े टैक्स होते हैं, जैसे कि 1 डे 2 डे 3 डे, एंड आपका मैनेजर आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखता है कि ये जो टास्क है ये टास्क आपको विद इन दिस पर्टिकुलर टाइमिंग में कंप्लीट करना है. यू शुड, भले आपका टैट 1 डे का है लेकिन यू शुड कंप्लीट इट बाय 4 आवर्स 5 आवर्स, राइट? तो अगर आप कोई चीजों को ऑटोमेट करते हो, सिंप्लीफाइड करते हो, तो ऑब्वियसली आपका टैट रिड्यूस होता है. टैट रिड्यूस होने की वजह से क्या होता है? आपका एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी बढ़ती है. अगर आप कोई मैनुअल काम करते हो, इवन दो वो मैनुअल काम आप पिछले 1 साल 2 साल से कर रहे हो सेम काम, फिर भी उसमें एक्यूरेसी कम होती है क्योंकि आप उसको मैन्युअली कर रहे हो. लेकिन वही चीज अगर आप ऑटोमेट करते हो तो ऑब्वियसली उसमें क्या होता है? आपका एक्यूरेसी पॉइंट बढ़ जाता है. एक्यूरेसी बढ़ गई, टैट कम हो गया, तो आपका एफिशिएंसी भी बढ़ गया. एंड अगर आपने ये सारी चीजें कर ली, जैसे कि टास्क को ऑटोमेट कर लिया, टैट को रिड्यूस कर लिया, आपकी एक्यूरेसी एफिशिएंसी बढ़ गई, एंड ऑफ द डे उसका रिजल्ट क्या आता है? आप टाइम सेव कर रहे हो. टाइम सेव करना मतलब क्या? पैसा सेव करना. एंड हर एक ऑर्गेनाइजेशन यही चाहता है, सेव टाइम एंड मनी, so that we could get new business for the timing that we have saved. Right or wrong? अगर आप भी एक बिजनेसमैन होते थे तो आप भी यही सोचते थे, करेक्ट? Right, sir. अगर आपका एक एम्प्लॉय है, वो 8 घंटे काम कर रहा है एक टास्क के ऊपर, अगर वही काम वो 4 आवर्स में Yes, कंप्लीट right. कर रहा है एंड 4 आवर्स वो आइडल बैठा है, तो आप क्या सोचोगे? अरे वो 4 आवर्स आइडल बैठने के बजाय उसको क्यों ना मैं एक नया टास्क असाइन कर लूं. नया टास्क असाइन करना मतलब नया बिजनेस लेना. सो हर कोई यही सोचता है कि अगर हम टाइम सेव कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम पैसा भी सेव कर रहे हैं. जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर आपने आपके स्किल सेट इंक्रीज कर लिए, ऑब्वियसली आपको आपके करियर में एक बूम मिल जाता है. एक स्किल सेट आपका डेवलप हो गया तो आप इंडस्ट्री में स्टैंड आउट परफॉर्मर की तरह नजर आते हो, राइट? एंड ऑफ दी, फिर उसके बाद क्या होगा? बी मोर एम्प्लॉयबल. अगर बी मोर एम्प्लॉयबल, आपको क्या लगता है इस वर्ड का मतलब क्या? बी मोर एम्प्लॉयबल. यस फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है?
यस फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है बी मोर एम्प्लॉयबल का मतलब क्या? जो आपको लगता है वो बताइए, इसमें कोई राइट या रॉन्ग चीज नहीं है। आप जब भी आंसर देते हो, आंसर्स आर नॉट ऑलवेज राइट और रॉन्ग। इस वर्ड से आपको क्या लगता है बी मोर एम्प्लॉयबल? Yes friends, am I audible to you? Friends, am I audible to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, तो आपको क्या लगता है बी मोर एम्प्लॉयबल मतलब क्या? ओके, चलो मैं सबसे सिंपलेस्ट वे में आपको समझाता हूँ बी मोर एम्प्लॉयबल मतलब क्या। सपोज अज्यूम करो आपके कंपनी में ले ऑफ स्टार्ट हुए हैं, राइट? आप मैनेजर हो, आप कौन से बंदे को ले ऑफ करोगे? सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन। ले ऑफ्स मतलब एम्प्लॉय को निकालना। सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन, क्या लगता है आपको, आप कौन से एम्प्लॉय को निकालोगे? जो थोड़े पुअर परफॉर्मेंस रहेंगे उनको। राइट, पुअर परफॉर्मेंस से और परफॉर्मर पुअर कैसा होता है? मतलब क्या रीजन से, मतलब कैसे आप उसको जज करोगे कि ही इज अ पुअर परफॉर्मर? कोई भी बताओ फ्रेंड्स। मैनेजर की तरह सोचो फ्रेंड्स, अगर आप मैनेजर की तरह नहीं सोचोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा बी मोर एम्प्लॉयबल का मतलब क्या है। आज नहीं तो कल आप भी मैनेजर होगे, टीम लीड होगे, आप भी कोई टीम को लीड करोगे। You are the future leaders, right? यही आपका किसी के लर्निंग। पास हाँ यस बोलिए किसी बोलिए। के पास ज्यादा स्किल्स रहेगा और वैल्यूएबल एम्प्लॉय रहेगा तो उस केस में बी मोर एम्प्लॉयबल रहेगा वो पर्सन। करेक्ट करेक्ट। तो इसमें क्या रहता है कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बंदा है जिसको कुछ आता ही नहीं है, ना एक्सेल आता है ना वीबीए आता है, कुछ नहीं आता है, ठीक है। एंड एक बंदा है जिसको एक्सेल भी आता है, वीबीए आता है, मतलब एक्सेल आना ही है, ओके, वीबीए आता है, राइट। एंड दोनों का पैकेज भी सेम है। तो आप क्या सोचोगे कि भाई जिसको वीबीए आता है मैं उसको रखता हूँ, जिसको नहीं आता है उसको निकाल देता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए इतना वैल्यूएबल एसेट नहीं है जितना वो वीबीए वाला मेरा वैल्यूएबल एसेट है। वीबीए वाले को भी मैं फॉर एग्जाम्पल 5 लाख का पैकेज दे रहा हूँ, नॉन वीबीए वाले को भी मैं 5 लाख का ही पैकेज दे रहा हूँ, ठीक है। दोनों को पैकेज सेम है, लेकिन जिसको वीबीए आ रहा है, मुझे पता है इसको वीबीए आ रहा है, मतलब ये काफी सारी चीजें जो ये बंदा जिनको वीबीए नहीं आता है उसका भी टास्क अगर इसने ऑटोमेट कर लिया, या 50% ऑफ हिज वर्कलोड उसने ऑटोमेट कर लिया, एंड 50% उसने उसमें ऑब्जर्व करने की कैपेबिलिटी है, तो इसको निकाल के इसको ही रखता हूं मैं। राइट और रॉन्ग? राइट राइट सर। ओके, तो ये एक एडवांटेज रहता है। एंड ऑलवेज एक चीज समझो कि अगर आपको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाथ मिल गया ना, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आईटी इंडस्ट्री में आपको जाने का एक मौका मिलता है। आप आपका करियर स्विच करने के बारे में सोच सकते हो। भले आज आप मल्टीपल सेक्टर में, कोई एमआईएस में है, कोई फाइनेंस में है, कोई सप्लाई चेन में है, मल्टीपल सेक्टर्स में है, लेकिन किसी का अगर ड्रीम है कि नहीं अभी मुझे करियर स्विच करना है फ्रॉम फाइनेंस सेक्टर टू आईटी सेक्टर, आप जा सकते हो। कोई सोचता होगा कि मुझे कंसल्टेंट का जॉब करना है, उसके लिए भी काफी यूजफुल चीज है, क्योंकि
कंसल्टेंट बेसिकली एक डेवलपर नहीं होता है, पता है ना आपको? कंसल्टेंट एक डेवलपर नहीं है, वो बस एक मीडिएटर होता है क्लाइंट एंड डेवलपर के बीच का। वो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट डेवलपर को प्रोवाइड करता है, सोल्यूशन प्रोवाइड करके क्लाइंट को हैंड ओवर करता है। तो कंसल्टेंट भी एक काफी पॉपुलर जॉब है मार्केट में, एंड बिना कंसल्टेंट के कोई भी डेवलपमेंट होता नहीं है। ही इज द मीडिएटर बिटवीन द क्लाइंट एंड द डेवलपर। ओके फ्रेंड्स, so coming to the last info, just a second, हाँ इसमें क्या हो गया, ये सेव नहीं हुआ था। ओके, एक जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यहाँ पे ये इन्फो मेरी सेव नहीं हुई थी, यहाँ पे मैं कुछ करेक्शंस कर रहा हूँ। सो हमारा जो बैच होगा वो एवरी संडे का बैच होगा, एंड इट वुड स्टार्ट ऑन 13th of August, and you have to pay the fees. Just a second, I would just make a changes. I don't understand why these changes has not been done. Okay, fine. So this is the info, last info of our course. Just a second, यहाँ पे भी changes होंगे। Simply did not understand why this happened. Okay. So हमारा बैच कोड जो होगा वो HPVB003 होगा। हमारा 4 months का कोर्स का ड्यूरेशन है, एंड हमारा बैच जो है वो संडे का होगा, एवरी संडे, एंड बैच टाइमिंग वुड बी 8 AM to 11 AM। बैच हमारा नेक्स्ट वीक दैट इज 13th of August से स्टार्ट होगा। कोर्स की फीस होगी 9,000 रुपीज, जो कि आप अगर आप इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी चूज कर रहे हो तो आपको 2 इंस्टॉलमेंट में पे आउट करना है। पहला इंस्टॉलमेंट वुड बी 4,500 रुपीज विच नीड्स टू बी पेड ऑन और बिफोर 13th of August, मतलब संडे से पहले आपको पे आउट करना है, नेक्स्ट संडे से पहले। एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपको 13 सितंबर से पहले पे आउट करना है। ओके फ्रेंड्स, एंड अगर आप पूरी फीस 9,000 रुपीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन पे आउट करते हो तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है, जो कि है 900 रुपीज, एंड यू हैव टू पे आउट ओनली 8,100 रुपीज। लेकिन इसका कंडीशन यही है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको ये पे आउट करना है। ओके, Sir, कोई sorry, या टेल मी। do we have any other batches? क्योंकि लास्ट टाइम मैंने देखा था जो अपना टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें देखा था कि कुछ ड्यूरेशन 2 महीने वाला भी था। वो डेली वाला बैच होता है, लेकिन अभी डेली वाला बैच नहीं है जिसका ड्यूरेशन 2 months वाला है। ओके, वो डेली का बैच रहता है मंडे टू फ्राइडे का, लेकिन अभी अगस्त के स्केड्यूल में वो वाला बैच नहीं है। अभी अगस्त के स्केड्यूल में ये वीकेंड वाला बैच है, क्योंकि उस बैच में हमको इतना अच्छा रिस्पांस मिला नहीं था, तो इस वजह से वो बैच को हमने डिसकंटिन्यू किया था। एंड लास्ट मंथ में ही था हमने वो बैच को शेड्यूल किया था, लेकिन इतना अच्छा रिस्पांस मिला नहीं था, क्योंकि काफी सारे बंदे वर्किंग होते हैं मंडे टू फ्राइडे में, एंड किसी को टाइम मिलता नहीं है एक्चुअली स्पीकिंग, क्योंकि आप इतना वर्क काम करके घर ऑफिस से घर आते हो, देन थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन का टाइम चाहिए होता है। राइट, तो इस वजह से हमको जो फीडबैक मिला था स्टूडेंट्स के तरफ से, उस हिसाब से हमने फिर वो कैंसिल कर दिया था बैच, एंड फिर संडे का बैच फाइनल किया। ओके, या सो जो पेमेंट मोड है वो मल्टीपल पेमेंट मोड्स है यहाँ पे। अगर आप देख रहे हो यूपीआई आईडी है, गूगल पे, फोन पे है, क्रेडिट कार्ड है, एनईएफटी, आईएमपीएस, बैंक ट्रांसफर भी आप कर सकते हो। एंड आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि पे द फीस using Google Pay और फोन पे, बिकॉज आज के डेट में गूगल पे एंड फोन पे इज द सिंपलेस्ट पेमेंट मेथड इन टू द मार्केट। ओके, एंड इसके लिए ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें कोई भी चार्जेस आपको लगते नहीं है। ओके, एंड यहाँ पे
अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे आउट करने की कोशिश करते हो, instamozo.com ये वेबसाइट है, इसके थ्रू अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करने की कोशिश करते हो तो आपको यहाँ पे गेटवे चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं, एंड गेटवे चार्जेस जो है वो स्टूडेंट को बेयर करना पड़ता है। Therefore, I would strongly recommend कि आप गूगल पे यूपीआई आईडी या फिर बैंक ट्रांसफर ही यूज करना पेमेंट करने के लिए। एंड आप में से कोई है जो ये जो कोर्स की फीस है अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिएम्बर्स करना चाहता है? फ्रेंड्स, आप में से कोई है जो ये कोर्स की फीस को रिएम्बर्स करना चाहता है अपने ऑर्गेनाइजेशन से? सर अभी मैंने चेक तो नहीं किया वेदर इट विल बी एप्लीकेबल एलिजिबल और नॉट। मैं एक बार चेक करके देन आई विल लेट यू नो अबाउट इट यस इफ आई कैन गेट द रिएम्बर्समेंट। हाँ, क्योंकि अगर आप कोर्स की फीस को रिएम्बर्स करना चाहते हो तो आपको 18% जीएसटी लगेगा, उसके लिए आपको टैक्स इनवॉइस मिलेगा। ओके, yes, so 9,000 plus 18% GST, so that would be coming up to like 9,000 plus 18%, that is 10,620। ठीक है सर, मैं कंफर्म करके मैं आपको देता हूँ। ओके, तो आपको 10,620 रुपीस का फीस पे आउट करना पड़ेगा। ओके, तो अगर आप रिएम्बर्स करना चाहते हो तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि एडमिशन लेने से पहले ही नोटिफाई करो कि आप ये कोर्स की फीस को रिएम्बर्स करना चाह रहे हो, सो दैट उस हिसाब से आपको जीएसटी इनवॉइस मिलेगा। ओके, एंड उस केस में आपको पूरी फीस एट द टाइम ऑफ एडमिशन पे आउट करना पड़ेगा, सो दैट आपको एक ही इनवॉइस मिलेगा वहां पे। ओके फ्रेंड्स, सो वी आर एंड टू दिस सेशन। अगर आपका कोई क्वेश्चंस होंगे सो प्लीज लेट मी नो, and I would request you to please note down this number. This is the number for our co-founder Dr. Sagar for paying the fees. ये नंबर नोट डाउन कीजिए प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन है जी, एक पूरा अपना बैच ऑफलाइन रहने वाले, ऑनलाइन भी रहने वाले, क्या ऑफलाइन भी कर सकते हैं? ये जो बैच है अभी ऑफलाइन सॉरी ऑनलाइन होगा, ये 100% ऑनलाइन बैच होगा। कौन सा ऑफलाइन नहीं है क्या? अगस्त के शेड्यूल में ऑफलाइन बैच नहीं है। ऑफलाइन बैच अभी ऑलरेडी हमारा एक चल रहा है जो कि सैटरडे का बैच है, लेकिन अभी अगस्त के शेड्यूल में ऑफलाइन बैच नहीं है, इट्स ऑनलाइन बैच। सो बेसिकली देखो, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में ज्यादा कुछ डिफरेंस होता नहीं है, बस इतना ही है कि आपको एक एडवांटेज मिलता है कि आप घर से बैठ के सेशंस को अटेंड कर सकते हो। फ्रेंड्स, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज म्यूट करना। सो देखिए, मैं आपको एक बेसिक सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैच में ज्यादा कुछ डिफरेंस होता नहीं है, बस ऑफलाइन में इतना एक आपको एडवांटेज मिलता है कि आप कहीं से भी क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। ओके, लेकिन आपको बस प्रोएक्टिव रहना है ऑनलाइन बैच में कि आपको रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस पूछने। अगर आप रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस पूछते हो तो डेफिनेटली आपको उसका एडवांटेज मिलेगा। अगर आप चाहो तो मोंटू जो है उसने हमारा ऑनलाइन बैच अटेंड किया था डेली वाला एक्सेल का, सो यू कैन आस्क हिम। आपको सेम क्वालिटी ऑफ लेक्चर्स वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। सो मोंटू, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शेयर योर फीडबैक कि ऑनलाइन बैच किस तरीके से होता है। हाँ सर, एक्चुअली ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई फर्क ही नहीं पता चलता है।
तो जो भी क्वेश्चन होता है ना वो हुसैन सर सॉर्ट आउट कर देते हैं, जितना भी बार पूछो वो सेम चीज आपको ऑफलाइन जैसा ही लगेगा, सिर्फ आपको घर पे बैठ के ही काम करना है, क्लास करना है, अदरवाइज नथिंग डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन और ऑफलाइन। ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है उसमें। एंड हमारा देखिए, हमारा क्लास का एक मोटो है कि हम हमारा जो हम ये नहीं सोचते कि क्लास जो है 4 महीने का है तो 4 महीने में ही कंप्लीट होना है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता हमारे क्लासेस में। अनटिल एंड अनलेस स्टूडेंट को क्वेरी रिजॉल्व नहीं हुई है, हम आगे बढ़ते ही नहीं है, भले वो एक स्टूडेंट क्यों ना रहे। अगर हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 2 स्टूडेंट्स को क्वेरी रिजॉल्व नहीं हुई है, वो अभी भी कंफ्यूज्ड है, उनको समझा ही नहीं है, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बढ़ते ही नहीं है। हम उसी एग्जाम्पल को और सिंप्लीफाइड वे में पूरे पीसेस में ब्रेक करके एग्जाम्पल्स को समझा के फिर फाइनल कंक्लूजन पे आके फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो ये मत सोचना कि कोर्स जो है 4 मंथ्स का है तो 4 मंथ्स में ही कंप्लीट होना है। हमको कुछ टारगेट्स नहीं है यहाँ पे। हमारा मेन मोटो है कि जो भी स्टूडेंट कोर्स करता है वो उसको पूरी तरीके से मीन्स 100% नॉलेज ट्रांसफर हो उसे, एंड जब वो क्लास के बाहर निकले तो डायरेक्टली चीजों को अप्लाई कर रहे, जो जो चीजें उन्होंने सीखी है क्लास में उस डायरेक्टली अपने रियल लाइफ में यूज करना स्टार्ट करें। हमारा मेन मोटो ये रहता है, यू शुड गेट 100% ऑनलाइन में आपके नॉलेज। रिकॉर्डिंग सेशन, या सॉरी, हाँ, ऑनलाइन में आपके रिकॉर्डिंग सेशन रहते हैं क्या? रिकॉर्डिंग सेशन देखिए, हमारी किसी भी क्लास में रिकॉर्डिंग सेशंस होते नहीं है। उसके पीछे मेन रीजन ये है कि अगर आप रिकॉर्डिंग करते हो तो कोई भी उसको इतना प्रोएक्टिवली देखता नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यूट्यूब पे तो ढेर सारे वीडियोस है, लेकिन आपने कभी उसको रेफर किए ही नहीं होंगे। रिकॉर्डिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आपका कोई क्वेरी होगा, आपको कुछ डाउट होगा, वो सॉल्व ही नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम रिकॉर्डिंग वाले सेशंस को प्रेफरेंस नहीं देते हैं। इंस्टेड वी फोर्स यूजर्स, मींस हम स्टूडेंट्स को फोर्स करते हैं कि क्लास में क्वेश्चंस पूछो, आपके डाउट्स क्लियर करके लो। अगर आप आपके डाउट्स क्लियर करोगे, आपको पूरा एग्जाम्पल समझ में आएगा। सो वी promote your students to ask the questions। आप जितने क्वेश्चंस पूछोगे उतने आपके डाउट्स क्लियर आउट होते रहेंगे, एंड उतना आपको मींस समझ में आएगा, चीजों को अंडरस्टैंड करने में आपको इजी रहेगा। और कोई क्वेश्चंस फ्रेंड्स? हेलो यस, सर, हम कितने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स कवर करेंगे इस दिस कोर्स, एंड और हर डोमेन में से हम कितने एग्जाम्पल्स कवर कर सकते हैं? देखिए, हम ऑलमोस्ट 150 प्लस एग्जाम्पल्स कवर करते हैं, ठीक है। एंड साथ ही साथ हम ये स्टूडेंट्स की कुछ क्वेरीज होती है तो वो भी अटेंड करते हैं, उसको भी एज एन एग्जाम्पल की तरह लेते हैं। एंड हमारे जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो प्योरली 100% प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स होते हैं। उसमें बस आपको थोड़े से कुछ मॉडिफिकेशंस करके आप आपका जो रियल लाइफ में आपका वर्क स्टेशन पे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। ओके। और हर एप्लीकेशन के साथ ये वीबीए कैसे यूज करेंगे ये हम सीखेंगे? नहीं, हम बस एक्सेल के साथ इसको किस तरीके से यूज करते हैं वो सीखेंगे, बिकॉज इट्स प्योरली वीबीए एक्सेल मैक्रो कोर्स। ओके। और एक सर क्वेश्चन है, अगर हम ये वीबीए का कोर्स करते हैं तो पाइथन का कितना परसेंट, पाइथन लैंग्वेज का हम कितना परसेंट कवर कर सकते हैं? देखिए, वीबीए अलग लैंग्वेज है, पाइथन अलग लैंग्वेज है। ओके, यहाँ पे आपको एक पाथ मिलेगा कि ओके। कोडिंग किस तरीके से लिखी जाती है, ओके, उसमें लॉजिक्स किस तरीके से बिल्डअप की जाती है,
ओके ये आपको एक पाथ मिलता है, आपको समझ में आता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने स्कूटी पे चला रहे हो, राइट, एंड सडनली मैंने आपको कोई बड़ा इंजन वाला गाड़ी लाकर दे दिया, जैसे कि 250 सीसी, मतलब नॉन गियर में ही 250 सीसी वाली गाड़ी लाके दे दी, तो ऑब्वियसली आप उसको चला पाओगे ना, इवन दो उसके फीचर्स फंक्शन सब अलग है, लेकिन फिर भी आप उसको चला सकते हो, राइट। राइट हाँ, वो आप कैसे चला पाओगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी बेसिक चीजें तो है, बेसिक नॉलेज तो है कि इसमें प्रोग्रामिंग में कैसा होता है। देखिए, मैं हमेशा यूजर्स को ये चीज समझाता हूँ, म्यूट करना प्लीज, थैंक यू। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये चीज समझाता हूँ, आप कोई भी कोर्स करते हो ना, स्पेशली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको आप एक वीडियो गेम की तरह लो। आप वीडियो गेम कैसे खेलते हो, पहले एकदम बेसिक लेवल खेलते हो, उसमें बेसिक में आपको मजा आया तो आप थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे चले जाते हो, उसमें भी आपको मजा आया तो फिर आप सबसे डिफिकल्ट लेवल पे चले जाते हो खेलने के लिए। तो आप, हमारा जो कोर्स का पैटर्न है ना, वो भी इसी तरीके से, पहले सबसे सिंपलेस्ट वे से हम स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे 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 करके हमारी डिफिकल्टी लेवल बढ़ती है, एंड आप जब इसको गेम की तरह लोगे ना, आपको बहुत मजा आएगा इसको खेलने में, कि यहाँ से ऐसा होता है, वहां से वैसा होता है। जस्ट टेक इट एज अ वीडियो गेम की तरह इसको खेलो, वीडियो गेम की तरह इसको सीखो, आपको बहुत मजा आएगा ये कर कोर्स में। फिर राइट आई होप सबको वीडियो गेम खेलना पसंद है। ओके फ्रेंड्स, सो और कोई क्वेश्चंस, क्वेरीज, डाउट? सर लेवल 1 एंड लेवल 2 में क्या डिफरेंस है सर? लेवल 1 में कितने टॉपिक कवर करेंगे? देखिए, कोर्स रिलेटेड, सिलेबस रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप हमारा जो वेबसाइट है वहाँ पे आप जाके को सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे होम पेज में जाके, एक मिनट, ये देखो, ये कोर्स का जो पेज है यहाँ पे आप ये सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से। एंड Sir लेवल 1, Sushil here. I have a question. सॉरी, I have a question, sir. Actually, sir, I am already working on this one of the project I have taken for from my organization regarding payroll variance report, where we need to, compare two reports and try to find out what is the variance between last month and current month. So, would this level one help me to build that report? ओके, जस्ट अ सेकेंड, मैं पहले प्रियंका का क्वेश्चन आंसर करता हूँ, फिर आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। ओके, तो जी जी पहला क्वेश्चन था कि लेवल 1 लेवल 2 में क्या डिफरेंस है, तो लेवल 1 लेवल 2 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ओके, लेवल 1 में आप एक्सेल पे किस तरीके से टास्क परफॉर्म करते हो वो सीखते हो, ठीक है, एंड लेवल 2 में आपका जो स्किल सेट है वो अपग्रेड हो जाता है, तो उसमें आपको फिर एक्सेल टू पीपीटी कैसे मूव हो सकते हैं, पीपीटी में कोड कैसे लिख सकते हैं, एक्सेल टू पीपीटी कैसे जा सकते हैं, एक्सेल टू आउटलुक कैसे जा सकते हैं, ये सारी चीजें उसमें सिखाई जाती है। मतलब मल्टीपल एप्लीकेशंस पे किस तरीके से स्विच होता है, वो सारी चीजें उसमें सिखाते हैं लेवल 2 में। फाउंडेशन में कैसा है कि पूरा बेसिक नॉलेज आपको दिया जाता है, सो दैट जब आप लेवल 2 में जाते हो तो आपको ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं आती। एंड कमिंग बैक टू योर सेकेंड क्वेश्चन, तो सर लेवल लेवल टू में हम मतलब लेवल वन में हम पूरा एक्सेल ही सीखते हैं, राइट सर? पूरा एक्सेल नहीं सीखते, पूरा कोडिंग सीखते हैं, आप किस तरीके से हाँ, कोडिंग पूरा लिखते हैं। कोडिंग एक्सेल एक्सेल पे, राइट सर? यस यस यस, एक्सेल रिलेटेड और फिर टास्क इस आप पूरा सीखते हो। और लेवल टू में फिर सर जितने डिफरेंट अलग एप्लीकेशन जैसे पीपीटी और एमएस वर्ड, उस पे हम वो लेवल टू में सीखते हैं, करेक्ट? करेक्ट, आउटलुक ज्यादातर, आउटलुक एक्सेल एंड आउटलुक बहुत ज्यादा यूज होता है वीबीए में, तो वो आप उसमें सीखते हो लेवल 2 में। ओके ओके, एंड उसी के साथ साथ आप ये भी सीखते हो लेवल 2 में कि कोडिंग्स को किस तरीके से सिंप्लीफाइड किया जाता है। मतलब बेसिक लेवल में आप कोडिंग्स बहुत सिंपल वे में लिखते हो, राइट, लेकिन लेवल 2 में कोडिंग कुछ
काफी प्रोफेशनल वेज में लिखते हैं, जिसमें जिसको पूरा 100% वीबीए का नॉलेज है वो ही उस चीज को कैप्चर कर सकता है। अगर बेसिक लेवल वाला अगर वो कोडिंग को देखेगा उसको समझेगा ही नहीं। उसमें क्लास मॉड्यूल वगैरह काफी सारी चीजें हम कवर अप करते हैं। क्लास मॉड्यूल जो है वो हम लेवल 2 में कवर अप करते हैं। एंड काफी इंटरेस्टिंग चीज है एडवांस वीबीए। एडवांस वीबीए का भी ड्यूरेशन इतनी है सर, 4 मंथ? यस, ओके। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये देखो एडवांस वीबीए का राइट 4 राइट। मंथ्स के। ओके। ओके, इसके अलावा जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जब आप इस पे क्लिक करते हो afckstechnologies.in पे, यहाँ पे एक लॉगिन का पेज है। तो नोट्स जो है, नोट्स आपको हमारा जो पोर्टल है यहाँ पे अपलोडेड रहते हैं। तो आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर से आपको लॉगिन करना पड़ता है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हो तो आपको रजिस्टर करने के बाद एक ओटीपी आता है। तो ओटीपी के लिए आपको रजा सर को कांटेक्ट करना पड़ेगा इस नंबर पे, सो दैट ही वुड बी प्रोवाइडिंग यू दी ओटीपी अगर आपको आपके मोबाइल पे ओटीपी नहीं आता है तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करते हो, यहाँ पे आपको डाउनलोड्स का ऑप्शन मिलता है। तो ये मैंने एज अ स्टूडेंट लॉगिन किया हुआ है। तो जैसे ही आप यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे जाते हो तो यहाँ पे आपको कोर्स रिलेटेड, जो कोर्स आप कर रहे हो उसके रिलेटेड यहाँ पे इन्फो मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलता है। तो आप जैसे यहाँ पे प्लस के सिंबल पे क्लिक करते हो तो सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे अपलोडेड रहते हैं। तो आप यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ओके फ्रेंड्स, सर इस कोर्स के लिए सर्टिफिकेट वगैरह कुछ मिलता है अपना इंस्टीट्यूट की तरफ से? यस, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। हर एक कोर्स के बाद एक एग्जामिनेशन होगी। जब आप एग्जामिनेशन क्लियर आउट करते हो तो आपको एक एक्सपर्ट का सर्टिफिकेट मिलता है। एंड अगर आप एग्जामिनेशन क्लियर नहीं करते हो तो आपको कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिलता है। सो जस्ट अ सेकेंड, आई विल जस्ट शो यू हाउ द सर्टिफिकेट वुड बी। ओके। Just give me a second. यस फ्रेंड्स, प्लीज कंफर्म मी, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस। ओके, सर दिख रहा है। हाँ, अगर आप एग्जामिनेशन क्लियर करते हो तो आपको इस तरीके से आपका सर्टिफिकेट मिलता है। ओके, एंड अगर आप एग्जामिनेशन क्लियर नहीं करते हो तो आपको नॉर्मल कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिलता है कि XYZ स्टूडेंट हैज कंप्लीटेड द कोर्स। ओके ओके। या और कुछ डाउट्स या क्वेरीज? सर हमें असाइनमेंट मिलेंगे ना करने के लिए? यस, आपको असाइनमेंट मिलेंगे। ओके, लेकिन असाइनमेंट का भी ऐसा है कि अगर आप प्रोएक्टिवली उसको करोगे तो आपको रेगुलर बेसिस पे असाइनमेंट्स मिलेंगे। अगर आप प्रोएक्टिवली असाइनमेंट्स नहीं करते हो तो फिर आपको क्लास में ही रियल टाइम पे एक असाइनमेंट्स दिए जाएंगे एंड आपको 5-10 मिनट का टाइम दिया जाएगा उस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए।
यूजुअली मैं असाइनमेंट्स देता हूँ, तो काफी टाइम क्या होता है कि अगर मैं असाइनमेंट्स देता हूँ तो ड्यू टू टाइम की कमी की वजह से स्टूडेंट्स असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ओके, सो जब हमारा क्लास चलता है उसी में मैं 5-10 मिनट का टाइम निकाल के आपको एक छोटा सा असाइनमेंट देता हूँ करने के लिए, सो दैट आप उस असाइनमेंट को कंप्लीट करोगे। एंड अगर आपको कुछ दिक्कत आती है उस असाइनमेंट में, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उसी वक्त आप पूछ लेना, तो मैं आपको उसमें भी हेल्प आउट करता हूँ। Okay. Yeah. Yes, friends. So anything else would you like to ask, और कोई questions, queries? सर कोई ऑनलाइन सेशन अगर मिस हुआ तो दोबारा होता है शेड्यूल? ओके, रीशेड्यूल होता है कुछ? मैं बताता हूँ मैं आपको। देखिए हमारा क्लास का पैटर्न कैसा है कि जब भी हम मतलब नया को न्यू डे स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल 13 अगस्त को हमारा फर्स्ट लेक्चर है, राइट। 13 अगस्त का जो भी हमने टॉपिक्स कवर किए होते हैं, तो 20 अगस्त को जब हमारा सेकेंड लेक्चर स्टार्ट होगा तो हम प्रीवियस लेक्चर का एक रिवीजन करते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या सीखा था। तो वो रिवीजन करने के बाद फिर हम नए टॉपिक के ऊपर मूव ऑन होते हैं। हमारे क्लास का ये पैटर्न ही है कि हम पिछले लेक्चर का रिवीजन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अगर आपने कोई एक लेक्चर मिस आउट भी कर लिया तो उसमें आपको एक एडवांटेज मिलता है कि आप जब नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करते हो तो रिवीजन में आप आपके जो भी क्वेरीज है वो आप पूछ सकते हो। रिवीजन में हम सारे चीजें कवर अप कर लेते हैं, एंड जब तक आपके डाउट्स क्लियर होते नहीं है हम आगे बढ़ते भी नहीं है। ओके सर, ओके। सो बेफिक्र रहो, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, मोंटू है, मोंटू मोंटू ने मेरा एडवांस एक्सेल का क्लास ज्वाइन किया था। सो एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू मे आस्क हिम अबाउट द फीडबैक, मीन्स रिव्यू ले सकते हो कि किस तरीके से क्लास था, या फिर आई वुड रिक्वेस्ट मोंटू टू प्लीज शेयर योर फीडबैक रिव्यू। सर मस्त पढ़ाते हैं, जो भी तुम्हारा डाउट है जितना बार भी चाहे आप पूछो। पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक तुमको मतलब ट्राई करते हैं वो तुमको अंडरस्टैंडिंग कराने की। जितना भी छोटा क्वेरी हो या जितने भी बड़े क्वेरी हो, वो इशू रिजल्ट भी होता है। या थैंक्स मोंटू। सर और एक बात, जो आपने अभी यूजर लॉगिन करके जो नोट्स दिखाए थे, नोट्स, वो नोट्स में क्या रहते हैं एक्चुअल में? हम जो एग्जाम्पल्स कवर करते हैं हमारे क्लासेस में, वो हाँ। वो सब कुछ उसमें अवेलेबल रहता है। I would just show you one sample notes. यस यस, दिखाओ। हाँ। ये देखो, ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, आपको स्क्रीनशॉट्स प्रोवाइड करते हैं सो दैट आपको पता रहे कि जब भी आप इन फ्यूचर रेफर करते हो तो किस तरीके, कौन से ऑप्शन पे क्लिक करने पे क्या होता है, क्या नहीं होता है। मतलब प्योरली आपका टेक्स्ट बुक्स कैसा होता है उस तरीके से मैं नोट्स देने का ट्राई करता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, कौन से बटन पे क्लिक करने पे क्या होगा, वो सब कुछ यहाँ पे एरो मार्किंग वगैरह करके सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर करवा के देता हूँ मैं यहाँ पे आपको। ये तो एकदम बेसिक लेवल है, जहाँ पे किस पे क्या क्लिक करने पे क्या होता है क्या नहीं होता है, वो यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश किया। ओके, दिस इज वन एग्जाम्पल। फिर उसके बाद यहाँ पे जब आप आते हो तो ये एक्सेल के फॉर्मूला के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की थी कि एक्सेल में आप फॉर्मूला किस तरीके से लिखते हो। ओके, एंड फिर उसके बाद यहाँ पे आप किस तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे एग्जाम्पल 3 में यहाँ पे हमने लिखा है, इन दिस एग्जाम्पल वी हैव यूज्ड लाइन फीडर।
दैट इज वीबी न्यू लाइन। ओके, अब ये न्यू लाइन का लिखने का तरीका क्या है? 4 तरीके। आप वीबी न्यू लाइन भी लिख सकते हो, वीबी एल एफ भी लिख सकते हो, वीबी सी आर एल एफ भी लिख सकते हो, सी एच आर 10 भी लिख सकते हो। सी एच आर 10 इज बेसिकली कैरेक्टर्स। यूनिकोड्स बोलते हैं इसको यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे होंगे, dim means dimension to define or set variables and data type. First define data type then variables. तो ये जो है ये आपका डेटा टाइप हो गया, ये आपका वेरिएबल हो गया आंसर। इस तरीके से पूरा डिटेल में आपको सारी चीजें बता दी जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, सिंटेक्स एरर मीन्स यू हैव डन समथिंग रॉन्ग व्हाइल टाइपिंग। यहाँ पे हमको एक सिंटेक्स एरर आया था, तो सिंटेक्स एरर क्या होता है वो हमने यहाँ पे बताया था। काफी सारी चीजें हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सेकेंड इफ कंडीशन, यहाँ पे फर्स्ट इफ कंडीशन हमने लगाई थी, फिर सेकेंड इफ कंडीशन लगाई, फिर थर्ड इफ कंडीशन लगाई, फिर यहाँ पे डेटा टाइप वेरिएबल डिक्लेयर टू ऐड शीट। किस तरीके से, ये हमारा एकदम बेसिक एग्जांपल शीट्स डॉट ऐड, एंड यही एग्जांपल को हमने यहाँ पे वेरिएबल्स डिफाइन करके, डेटा टाइप डिफाइन करके किया हुआ था। तो ये देखो ये किस तरीके से किया है। तो ऐसे आपको काफी डिटेल में हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं, सो दैट जब भी आप इसको रेफर करोगे आपको इंस्टेंटली क्लिक हो जाता है कि यहाँ पे करना क्या है आपको। हुसैन सर, हम इसमें ये भी सीखेंगे कि बीबीए में फॉर्मूलाज कैसे यूज करना है। यस, just a second, I would just show you one sample example. यहाँ पे किया था हमने। सब कुछ कवर होगा इसमें, डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पे देखो हमने वर्कशीट फंक्शंस यूज किए हुए हैं, और यहाँ पे हमने रेंज डॉट फॉर्मूला ये वाला, ये दोनों में डिफरेंस है। ओके, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि रैन बिटवीन हमने कब यूज किया है, वर्कशीट फंक्शन हमने यूज किया हुआ यहाँ पे सम। अभी VBA में दो तरीके से आप फॉर्मूलाज लिख सकते हो, एक वर्कशीट फंक्शंस के थ्रू और एक नॉर्मल डायरेक्टली आप आपका फॉर्मूला भी स्ट्रिंग फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में लिख सकते हो। तो उसका डिफरेंस क्या है वो यहाँ पे हमने बताया हुआ है। ओके, इस तरीके से आप कर सकते हो। फिर इवन पे स्पेशल वैल्यूज करते हो, फिर पे स्पेशल वैल्यूज में आप किस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने सिंपली एक्सेल पेस्ट वैल्यूज लिखा है, यहाँ पे पेस्ट डबल कोलन इक्वल्स टू एक्सेल पेस्ट वैल्यूज लिखा है, फिर ट्रांसपोज किया। सारे चीजें बेसिक से लेके मतलब एडवांस लेवल तक सारी चीजें कवर अप होती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमने किस तरीके से वर्कबुक, दूसरे वर्कबुक से करंट एक्टिव वर्कबुक में डेटा कॉपी पेस्ट किया हुआ था। फिर यहाँ पे हमने VBA कोड किसी और शीट में लिखा, वर्कबुक में लिखा था, एंड सोर्स वर्कबुक कोई और थी, डेस्टिनेशन वर्कबुक हमारी कोई और थी, वहां से हमने कॉपी पेस्ट किया था डेटा को। फिर यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमने वेरिएबल्स डिफाइन करके किए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सारे नोट्स आपको प्रॉपरली मिलते हैं, जिस तरीके से टेक्स्ट बुक में आपका होता है ना। हम कोशिश यही करते हैं कि टेक्स्ट बुक्स जैसे होते हैं आपके, कि पढ़ने के बाद इमीडिएटली आपको समझ में आए, वही चीज यहाँ पे आपका कवर अप होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इन दिस एग्जांपल वी हैव यूज्ड डेटा टाइप एज वर्कबुक, एंड वी हैव आल्सो सीन हाउ वी कुड कंटिन्यूअसली कीप राइटिंग डेटा टाइप वाया सेपरेटर कॉमा। ये देखो यहाँ पे हमने कंटिन्यूअसली लिखने की कोशिश की। एंड यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऊपर, एक मिनट, हाँ ये बहुत आगे वाला लिया था मैंने, एक मिनट, नीचे लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में है वो, एक ही मिनट, इसमें है।
ये देखिए यहाँ पे हमने कंटिन्यूएशन में एक लिखा था, फिर उसके बाद सेकेंड डिम डाल के हमने दूसरा डेटा टाइप डिफाइन किया था। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें आपको बताते हैं। ये देखो इतने नोट्स होते हैं सो दैट आपको कुछ डाउट ही नहीं रहता है जब आप ये नोट्स को रेफर करते हैं। फिर भी कुछ डाउट्स होता है सो यू मे अप्रोच मी during our lectures. I would definitely help you out in resolving your query. और कुछ डाउट्स या क्वेरीज फ्रेंड्स? सर मेरा जो हाँ यस वन बाय वन पूछना। यस सुशील हियर। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो मैंने आपको बोला कि अभी मैं एक वेरिएंस रिपोर्ट मेरा रिक्वायरमेंट था एज आई एम वर्किंग इन पेरोल डिपार्टमेंट, तो वो जो लेवल 1 में मुझे वो पूरा सीखने को मिलेगा क्या? yes. कि कैसे मैं वेरिएंस रिपोर्ट? अच्छा ओके सर, सब कुछ वहाँ पे कवर अप होगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है इनकम हुसैन सर वो अपना लेवल 1 में वो रेफरेंस का भी जो टूल्स के अंदर में रेफरेंस है वो उसके ऊपर में भी डिस्कशन होता है ना? रेफरेंस का कौन सा बोल रहे हो आप? एक मिनट आपको मैं दिखाता हूँ। या आप स्क्रीन वो जो हाँ 1 मिनट आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो मोन्टू? हाँ सर। ओके ठीक है, एक मिनट में मेरा स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ। एंटर स्क्रीन। यस मोन्टू। ये वाला टॉपिक के ऊपर में से टूल्स और रेफरेंस में हाँ इसका मैं आपको एक बेसिक आइडिया बताऊंगा। ओके ये बेसिकली इसमें यूज होता है, एडवांस वीबीए में यूज होता है, लेकिन मैं आपको एक बेसिक आइडिया इसकी दे दूंगा कि ये एग्जैक्टली करता क्या है। ओके यस ठीक है सर। ओके यस फ्रेंड्स, और कोई क्वेश्चंस डाउट क्वेरीज है आपके? नो सर। Okay, so hope I have answered all your doubts and queries. हेलो Yes. सर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवा लेंगे हमसे? देखिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन एज सच तो हमारे यहाँ पे होता नहीं है ओके क्लासेस में, लेकिन हाँ जब हम लेक्चर्स करते हैं तो कुछ हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस ऐसे लिए हुए हैं हमने कि जो यूजुअली इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है हमारे जो यूजुअली इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, तो वहां पे इट वुड हेल्प यू आउट कि टू अंडरस्टैंड कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं इंटरव्यू में। ओके ओके फ्रेंड्स, सो एनी अदर क्वेश्चंस? सर कुछ इन केस इफ यू हैव एनी क्वेरी so shall I contact Raza sir or you? ओके सो देखिए हम एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाते हैं जी। और हमारा जो भी क्लासेस होते हैं हर एक क्लासेस का एक व्हाट्सएप का ग्रुप रहता है। सो आप आपकी जो भी क्वेरीज होती है वो व्हाट्सएप के ग्रुप पे पोस्ट कीजिए। सो हमारे जो एग्जिस्टिंग बैच के स्टूडेंट्स है वो आपको हेल्प आउट करेंगे। अगर वो आपको हेल्प आउट नहीं कर रहे देन आई वुड बी हेल्पिंग यू आउट विथ इट। ओके एंड इसी के साथ साथ टेलीग्राम पे भी हमारा एक क्वेरी सॉल्विंग का ग्रुप है। सो वहां पे भी आप ऐड ऑन हो सकते हो एंड वहां पे भी आप आपकी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हो। सो वहां पे भी जो हमारे एक्स स्टूडेंट्स है वो आपको हेल्प आउट करेंगे। अगर वो आपको हेल्प आउट नहीं कर पा रहे हैं तो रजा सर या फिर मैं या फिर कोई और ट्रेनर आपको वहां पे डेफिनेटली हेल्प आउट करेगा। ओके टिल ज्वाइनिंग डेट सर, अभी 13 को जैसे ज्वाइनिंग डेट बोला आपने जी, तो वो 13 तक कोई क्वेरी रहा अभी इसके बाद, इस सेशन के बाद, तो किससे कांटेक्ट रजा सर से करना पड़ेगा या आपसे करना पड़ेगा सर कांटेक्ट?
आप किसी से भी कर सकते हो, मेरे से कर सकते हो, रजा सर से कर सकते हो. ओके ओके ठीक है Yeah, सर. you ठीक. could ask anybody, and I would just share my number with you. ओके. Okay. So this is my contact number. अगर आप फीस पे आउट कर रहे हो तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शेयर द स्क्रीनशॉट विथ मी, सो दैट आई वुड इन्फॉर्म द रिस्पेक्ट कंसर्न पर्सन टू अपडेट द डिटेल्स. श्योर सर श्योर. ओके, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू, ये रजा सर का नंबर है यहाँ पे 976211, ये रजा सर का नंबर है यहाँ पे. ओके, और ये जो नंबर है ये मेरा नंबर है. ओके, सो यू मे अप्रोच मी रजा सर, ओके, एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम. अगर हम बिजी है, ओके, हम आपका कॉल आंसर नहीं कर पा रहे हैं, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू जस्ट ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज. ठीक है, सो दैट आपका मैसेज देख के हम आपको आंसर कर देंगे. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप रजा सर को अप्रोच करने की कोशिश करते हो, लेकिन रजा सर लेक्चर में होते हैं, तो इंस्टेंटली वो आपको आंसर नहीं कर पाता है. या फिर आप मुझे अप्रोच करने की कोशिश करते हो, मैं कई दूसरे टास्क में बिजी होता हूँ, एंड इंस्टेंटली मैं आपको हेल्प आउट नहीं कर पाता हूँ. सो इन दैट सिनेरियो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू जस्ट ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज. जैसे ही हम व्हाट्सएप मैसेज देखते हैं, इमीडिएटली आपको रिप्लाई बैक करेंगे. ओके. ओके. या और कुछ डाउट्स या क्वेरीज है आपके? नो सर. ओके, आई होप सभी लोगों ने रजा सर का नंबर नोट डाउन किया होगा फॉर पेइंग द फीस. हेलो यस. यस सर. सर, जॉब के लिए आप कॉल प्रोवाइड करते हो? नहीं, जॉब के लिए हम कॉल प्रोवाइड नहीं करते. जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में बोला था, हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है. ओके, आई वुड जस्ट शो यू द ग्रुप अगेन. जस्ट अ सेकंड. यहाँ पे देखो, ये टेलीग्राम का ग्रुप है. आप जब इस पे क्लिक करोगे, यू इन टेलीग्राम, एक मिनट, जस्ट अ सेकंड. जस्ट अ सेकेंड, मैं टेलीग्राम वेब पे ये कर रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ वो ग्रुप कैसा है. सर लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं है जॉब के लिए, मतलब वैकेंसी के लिए. मैंने ज्वाइन किया एक टेलीग्राम ग्रुप, लेकिन उसमें इतना फ्रीक्वेंसी नहीं है जॉब के लिए, मतलब हाँ, पोस्ट. तो जैसे जैसे हाँ. आपका ये होगा, मतलब जैसे जैसे जॉब पोस्टिंग आएगी, वैसे वैसे आपको नजर आएगा ना, मतलब पोस्टिंग्स आएगी ना. वैसे तो फ्रीक्वेंसी रहती है उसमें, ओके, लेकिन मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है. अगर आप देखोगे यहाँ पे, एक मिनट, 4000 प्लस मेंबर्स है हमारे यहाँ पे अभी. 4000 मेंबर्स हैं. ये देखो, इसमें कंटिन्यूअसली जॉब अपॉर्चुनिटीज आती रहती है. हायरिंग टैलेंट फॉर बिलो पोजीशन, जावा डेवलपर, पीएचपी डेवलपर, इस तरीके से सीनियर सेल्स, मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है इसमें. सो यू मे जस्ट लुक फॉर इट, ओके, एंड अप्लाई फॉर इट. सर आई हैव वन मोर क्वेश्चन. यस. ये जो लर्निंग जो जो प्लेटफॉर्म रहेगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये सेम रहेगा सर, ये जीमेल पे या फिर जूम पे? जीमेल पे ही होगा. ओके ओके.
यही अपना गूगल मीट्स के थ्रू ही होगा। ठीक है सर। Okay, so friends, hope I have answered all your queries and cleared all your doubts. So again, I would request you to please note down Raza sir's number, and जब भी आप फीस पे आउट कर रहे हो तो जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट होगा वो मुझे भी शेयर करना मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ये मेरा नंबर है, ओके, सो दैट मैं जो कंसर्न पर्सन है उसको नोटिफाई करके आपका जो डेटा है वो बैकएंड में अपडेट करवा कर ले लूंगा। ओके, एंड साथ ही साथ रजा सर को भी स्क्रीनशॉट भेज देना, एंड उसमें आप लिख देना कि ये हमारा बैच कोड है HPVB003, इसके लिए आपने पेमेंट किया हुआ है, सो दैट उनको पता रहे कि किस बैच के लिए पेमेंट आपने एडमिशन लिया हुआ है। ओके ओके सर। Okay, friends, so we will wind up a call over here and meet you next Sunday at 13th August, on 13th August 8 AM. ठीक है? ओके सर। Okay, so Yes. कुछ भी doubts, queries होंगे, so I would Thank you. strongly recommend to contact me or Raza sir. We will help you out with your queries. थैंक यू। Okay? Bye. Okay, sir. Thank you. Bye. Yeah. Have a nice day.